Hello, friends. Welcome back again. So, today we're going to discuss a new story. The name, as you can see here in the title, Little Boy and Wise Old Man. Little Boy and Wise Old Man. So, at the very first, I will try to read it out loudly and then I will try to एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन. सो बने रहिए हमारे साथ. पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका भी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाए. तो चले बिना टाइम वेस्ट के उसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना. वंस इन विलेज lived a little boy who was very athletic and for whom winning was most important. One day, that boy participated in a running competition held in village. In that competition, he competed with other two young boys. Race commenced, crowd cheered and waved at him. Boy called on his determination and strength. He won and came first. Little boy felt proud. Later, second race was called, and in this race, two young and fit challenger came forward and ran in competition with little boy. Once again, little boy finished first. Crowd was ecstatic and cheered and waved at that boy. There an old man was watching all this. Little boy who felt proud and more important and started to plead, another race, another race. Seeing this wise old man stepped forward, and with him he presented two new challengers. Among new challengers, one was a frail old lady, and other was a blind man. Little boy was confused and asked, "What's this? This is no race." Old man replied, "Race. After all, we're set on starting line. Race started and boy was only one to finish that race, leaving two challengers standing at the starting line. Little boy raised his arms in delight, but to his surprise, this time no one from crowd was cheering and everyone was just looking at him silently. What happened? Why are people not cheering? Little boy asked old man. Old man replied, "Race again, but this time finish all together." Little boy thought for a while and then again went to starting line and stood in middle of old lady and blind man. Then he took both of them by hand and started to walk slowly and at last crossed that finish line. This time, at end of race, crowd smiled and cheered and waved at end of race. Little boy felt proud but still didn't understand why crowd was not cheering him before, but now when all three of them finished race together, so he asked old man about it. Old man replied, "Little boy, in this race, you have won much more than what you own in any other race. You have won people's respect." सो ये हमारा रीडिंग हो गया. रीडिंग का पोर्शन जो था हमारा हो गया. हमने ट्राई की कि इजीली मतलब एकदम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोरी का पढ़े ताकि आप भी उस स्टोरी को पढ़ने का जो ढंग है उसको समझ पाए एंड पढ़ने की जो मतलब कैपेबिलिटी है वो भी आपको बिल्डअप हो. सो इसीलिए हमने मतलब धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश की. तो चले हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन. हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए देखें. एंड हम आपको एक बात बता दें कि ये वीडियो नंबर आई थिंक 15 हो जाएगा. मतलब उससे पहले 14 स्टोरीज और भी हो चुका है जो इतना इजी है एंड एक्सप्लेन इतना अच्छी तरह से किया गया है. अगर आपने उस स्टोरीज़ को एक बार देख ले, समझ ले तो मतलब बहुत इम्प्रूव हो जाएगा उस लैंग्वेज पे आपका मतलब स्किल्स. तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ चैनल पे विजिट करके उन स्टोरीज़ को देख ले. एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले उसको ताकि कोई भी स्टोरीज़ मिस ना हो. तो चलो उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पहले लाइन से. तो हम टाइटल को पहले देख लेते हैं, उस पर क्या लिखा है. लिटिल बॉय मतलब एक छोटा बच्चा एंड वाइज ओल्ड मैन. वाइज जो ज्ञानी होते हैं, वाइज जिसके पास बहुत नॉलेज होता है, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं उसको वाइज कहा जाता है. ओल्ड मैन मतलब एज्ड आदमी, बहुत मतलब
उम्र हो गया बुढ़ा आदमी, एक बुद्धिमान बुढ़ा आदमी एंड एक छोटा बच्चा, उसका रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं उस स्टोरी पे क्या होता है एंड क्या मैसेज दिया जाता है हमको। एक मॉरल स्टोरीज है तो मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज मिलता है हमको। तो चले देखिए। वंस, एक बार क्या हुआ, इन विलेज मतलब गांव में, इन विलेज गांव में लिव्ड रहता था ए लिटिल बॉय, एक बच्चा रहता था। हु वॉज वेरी एथलेटिक, हु वॉज वेरी एथलेटिक, वो क्या था, वेरी एथलेटिक मतलब बहुत खिलाड़ी था, एथलेटिक मतलब वो स्ट्रॉन्ग था, खेल कूद में बहुत अच्छा था, एथलेटिक था। एंड फॉर होम, एंड उसके, फॉर होम उसके लिए, फॉर होम उसके लिए विनिंग मतलब जीतना, वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो अगर हम एक साथ उस मतलब मीनिंग्स को कहें तो क्या होगा, वंस इन विलेज, एक बार विलेज में लिव्ड ए लिटिल बॉय, एक बच्चा रहता था। हु वॉज वेरी एथलेटिक एंड फॉर होम विनिंग वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत खिलाड़ी था, बहुत स्ट्रॉन्ग था खेल कूद में, एंड उसको जीतना बहुत इम्पोर्टेंट लगता था, किसी भी चीज़ में बस वो जीतना चाहता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में वन डे क्या हुआ, एक दिन, दैट बॉय पार्टिसिपेटेड इन रनिंग कंपटीशन हेल्ड इन विलेज। पार्टिसिपेट किया मतलब हिस्सा लिया मतलब किसमें, इन रनिंग कंपटीशन, एक दौड़ के कंपटीशन हो रहे थे, हेल्ड इन विलेज, हेल्ड मतलब किया गया, इन विलेज, विलेज के अंदर मतलब विलेज में एक दौड़ के कंपटीशन का प्रोग्राम रखा गया, तो उसमें उसने हिस्सा लिया। दैट बॉय पार्टिसिपेटेड, उस बॉय ने हिस्सा लिया, इन रनिंग कंपटीशन दौड़ के कंपटीशन में, हेल्ड इन विलेज जो विलेज में मतलब उसका प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इन दैट कंपटीशन, उसी कंपटीशन में, इन दैट कंपटीशन उसी कंपटीशन में, ही कम्पीटेड विद अदर टू यंग बॉयज, उसने किसके साथ कंपटीशन की, विद अदर टू यंग बॉयज, और दो यंग बच्चे थे उनके साथ उसने कंपटीशन की। रेस कमेंस्ड मतलब स्टार्ट होना, तो रेस जो है, रनिंग का रेस जो है, वो गेम जो है वो स्टार्ट हो गया। क्राउड चीयर्ड, क्राउड मतलब जो भीड़ है उस मतलब खेल को देखने आए थे कंपटीशन को, तो क्राउड ने चीयर्ड किया, चीयर्ड मतलब खुशी से चिल्लाना, तो ऐसे चिल्लाया। एंड वेव्ड एट हिम, एंड उसके तरफ मतलब उसके तरफ अपना हाथ उठा के ऐसे वेव किया, मतलब ऐसे हाथ उठा के उसको दिखाया, तो अपना हाथ हिला के वो लोग चीयर कर रहे थे उसको। बॉय कॉल्ड ऑन हिज डिटर्मिनेशन, बॉल्ड बॉय कॉल्ड मीन्स, तो उस बॉय को जाना जाता है ऑन हिज डिटर्मिनेशन, कि वो बहुत डिटरमाइन है, बहुत डिटरमाइन, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरह से करता है, अच्छे ढंग से करता है, बहुत डिटर्मिनेशन है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए उसको जाना जाता है। एंड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ के मतलब उसके पास जो शक्ति है, डिटर्मिनेशन है उसके लिए। तो ही ओन मतलब वो जीत गया, ओन मतलब जीतना, विन का पास्ट है ओन, तो वो जीत गया। एंड केम फर्स्ट, एंड नंबर फर्स्ट आया, फर्स्ट नंबर आया। लिटिल बॉय फेल्ट प्राउड, तो उस छोटे बच्चे ने क्या किया, मतलब गर्व महसूस किया, प्राउड फील किया, गर्व महसूस किया। तो उसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है, लेटर सेकंड रेस वाज कॉल्ड, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड दूसरा और एक रेस बुलाया गया, वाज कॉल्ड मतलब और एक रेस रखा गया। एंड इन दिस रेस, एंड उसी रेस में मतलब दूसरे रेस में, टू यंग एंड फिट चैलेंजर, और दो यंग, टू मतलब दो युवक एंड, दो युवा एंड फिट चैलेंजर मतलब बहुत फिट थे चैलेंज करने में, रेसिंग में। केम फॉरवर्ड मतलब आगे आए, एंड रन इन कंपटीशन, एंड दौड़े उस कंपटीशन में, दौड़ लगाए। विद लिटिल बॉय, किसके साथ, उसी लिटिल बॉय के साथ जो पहले बार फर्स्ट आया था। वंस अगेन लिटिल बॉय फिनिश्ड फर्स्ट, वंस अगेन और एक बार, वंस अगेन मतलब और एक बार, लिटिल बॉय फिनिश्ड मतलब छोटे बच्चे ने फिनिश कर लिया दौड़ को, मतलब खत्म कर दिया, फर्स्ट मतलब पहले, मतलब जीत गया। क्राउड वाज एक्सटेटिक, तो क्राउड जो भीड़ थे वो क्या थे, एक्सटेटिक मतलब बहुत खुश थे, वेरी हैप्पी, उसको एक्सटेटिक कहा जाता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो क्राउड क्या थे, भीड़ बहुत खुश थे। एंड चीयर्ड एंड वेव्ड एट द बॉय मतलब अपना हाथ हिला के उस बॉय को खुशी खुशी से चिल्ला चिल्ला के चीयर कर रहे थे। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पैराग्राफ में, देयर एन ओल्ड मैन, यहाँ एक ओल्ड मैन थे मतलब बुढ़ा आदमी थे। वॉज वॉचिंग मतलब सब देख रहे थे, ऑल दिस, वॉचिंग ऑल दिस सब देख रहे थे। देयर एन ओल्ड मैन वॉज वॉचिंग ऑल दिस मतलब क्या है, मतलब एक बुढ़ा आदमी वो सब कुछ देख रहे थे कि कैसे उस बच्चे ने जीता, 2 बार जीता, फिर प्राउड फील भी किया, लोग उसको मतलब वेव करके उसको चीयर कर रहे थे। तो लिटिल बॉय हु फेल्ट प्राउड एंड मोर इम्पॉर्टेंट, लिटिल बॉय ने, छोटा बच्चा ने जो प्राउड फील किया, हु फेल्ट प्राउड मतलब अपना
जो गर्व महसूस किया, एंड मोर इम्पोर्टेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़, एंड स्टार्टेड टू प्लीड जरा से अनदर रेस एंड स्टार्टेड टू प्लीज, मतलब लिटिल बॉय ने स्टार्ट कर, मतलब क्या कर दिया, मतलब अनदर रेस, मतलब वो कह रहा है कि और एक रेस चाहिए, और एक रेस चाहिए। मतलब वो लिटिल बॉय 2 बार जीत गया, और एक रेस भी हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो फिर भी जीतेगा, फिर भी वो प्राउड फील करेगा, फिर भी मतलब लोग उसको हाथ हिला के उसको चीयर करेंगे। तो ऐसा इसलिए लिटिल बॉय क्या कर रहा है, लिटिल बॉय हु फेल्ट प्राउड, मतलब गर्व महसूस किया, एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड स्टार्टेड टू प्लीड, फिर मतलब प्लीड कर रहा है, वो कह रहा है कि अनदर रेस और एक रेस चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, सीइंग दिस, वो देख के, उस लिटिल बॉय को देख के, वाइज ओल्ड मैन स्टेप फॉरवर्ड, जो वाइज ओल्ड मैन थे, जो बुद्धिमान जो ज्ञानी ओल्ड मैन थे, जो बुढ़े आदमी थे, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप किया मतलब अपना मतलब कदम को आगे बढ़ाए, फॉरवर्ड मतलब आगे, स्टेप मतलब अपना कदम को आगे बढ़ाए, एंड विद हिम ही प्रेजेंटेड टू न्यू चैलेंजर्स, एंड उसके साथ मतलब उस मैन के साथ, ओल्ड मैन के साथ क्या थे, ही प्रेजेंटेड टू न्यू चैलेंजर्स, और दो नया चैलेंजर्स को आगे बढ़ाए, प्रेजेंट किए, मतलब नया चैलेंजर्स को रखे। बिकॉज लिटिल बॉय चिल्ला रहा था कि अनदर रेस, तो बड़े आदमी आगे आए एंड उनके साथ और 2 न्यू चैलेंजर्स को लाए कि अब वो लोग कंपटीशन करेंगे। तो एमोंग न्यू चैलेंजर्स, उस न्यू चैलेंजर्स के दरमियान, जो 2 न्यू चैलेंजर्स थे उनके दरमियान, वन वाज एन फ्रेल ओल्ड लेडी, तो एक क्या थे, फ्रेल ओल्ड लेडी, फ्रेल मतलब होता है बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर ओल्ड लेडी मतलब बड़े, तो कमज़ोर एंड ओल्ड लेडी मतलब एक बुढ़ी औरत थी, एंड अदर वाज ब्लाइंड मैन, एंड और एक कौन था, एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी था। तो उस मतलब ओल्ड मैन ने जो 2 चैलेंजर्स को सामने लाया, उनमें से एक क्या था, फ्रेल ओल्ड लेडी, एक कमज़ोर बुढ़ी औरत, एंड उसके साथ और एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी। उसके बाद लिटिल बॉय वाज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड, लिटिल बॉय ने, छोटा बच्चा नहीं है, देख के कंफ्यूज्ड हो गया, एंड आस्क मतलब पूछा, व्हाट्स दिस, ये क्या है, दिस इज नो रेस, ये कोई रेस नहीं हो सकता। ओल्ड मैन रिप्लाई कर रहे, रेस, ये रेस है। तो उसके बाद उस पैराग्राफ में, आफ्टर ऑल वेयर सेट ऑन स्टार्टिंग लाइन, सब कुछ को मतलब स्टार्टिंग लाइन पे, जिस लाइन से गेम स्टार्ट हो रहा है उस लाइन पे सबको सेट किया गया। सेट करने के बाद क्या हुआ, रेस स्टार्टेड, अब रेस स्टार्ट हो गया, एंड बॉय वाज ओनली वन, एक ही मतलब वही बच्चा था, टू फिनिश दैट रेस, उस रेस को किसने फिनिश कर दिया, गेम को, मतलब बॉय ने मतलब फिनिश लाइन को टच कर लिया, मतलब बॉय जीत गया। लीविंग मतलब छोड़ के 2 चैलेंजर्स, जो नए 2 चैलेंजर्स है उनको छोड़ के, कहाँ, स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग लाइन, अपने जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ खड़े छोड़ के, वो बॉय अपने मतलब फिनिश लाइन को टच कर लिया, क्योंकि वही एक कमज़ोर बुढ़ी औरत थी और दूसरा कौन था, एक अंधा आदमी, तो वो आगे जा नहीं सकते, तो उनको पहले लाइन में छोड़ के बॉय अपने आप ही चला गया, एंड क्या हो गया, अपना जीत गया। जीतने के बाद क्या हुआ, लिटिल बॉय रेज्ड हिज आर्म्स मतलब अपना हाथ, दोनों हाथ, रेज मतलब उठाया, तो लिटिल बॉय ने, बच्चा ने अपना दोनों हाथ ऊपर उठाया, इन डिलाइट मतलब खुशी से अपना दोनों हाथ ऊपर उठाया, बट टू हिज सरप्राइज, बट अचानक क्या लगा उसको, अचानक ये लगा, दिस टाइम, उसी टाइम में, नो वन फ्रॉम क्राउड, मतलब क्राउड में से, भीड़ में से कोई भी, वाज चीयरिंग, कोई भी उसको चीयर नहीं कर रहे थे, कोई भी उसके खुशी में मतलब चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहे थे, एंड एवरी वन वॉज जस्ट लुकिंग, एंड हर लोग क्या कर रहे थे, वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम साइलेंटली, बिना बात किए साइलेंटली सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे, बिना चिल्लाए, बिना हाथ हिलाए, पहले जैसे करते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग साइलेंटली सिर्फ उसको देख रहे हैं। व्हाट हैपेंड, तो वो जो व्हाट हैपेंड है, वो लिटिल बॉय ने, छोटे बच्चे ने मतलब पूछा, ऐसा देखा, व्हाट हैपेंड, अरे क्या हो गया, पहले लोग तो मुझे ऐसे मतलब खुशी से मतलब मुझे वेव कर रहे थे, अब कोई नहीं खुश हो रहे, किस लिए, वाई आर पीपल नॉट चीयरिंग, क्यों लोग मुझे चेयर नहीं कर रहे, क्यों लोग मुझे चेयर नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने तो फिर भी जीता हूँ। लिटिल बॉय आस्क्ड ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को लिटिल बॉय ने, छोटा बच्चा ने पूछा कि लोग क्यों मुझे चेयर नहीं कर रहे हैं अब। ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने रिप्लाई की, रेस अगेन, बट दिस टाइम, रिप्लाई की कि रेस अगेन, प्लीज़ क्या करो,
फिर और एक रेस लगाओ, बट दिस टाइम फिनिश ऑल टुगेदर, और एक रेस लगाओ एंड फिनिश करो ऑल टुगेदर, सब लोग एक साथ मिलके। मतलब जो न्यू चैलेंजर्स है, एक मतलब कमज़ोर औरत थी एंड एक ब्लाइंड मैन मतलब अंधे मतलब आदमी थे, उन सब दोनों को लेके तुम तीनों एक साथ फिनिश लाइन को टच करो, खेल को शेष करो, ख़त्म करो। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो लिटिल बॉय ने क्या किया, लिटिल बॉय थॉट फॉर ए वाइल, थॉट मतलब थोड़ा सोचा, फॉर ए वाइल कुछ टाइम सोचा, एंड देन अगेन वेंट टू स्टार्टिंग लाइन, फिर कहाँ गया, फिर स्टार्टिंग लाइन पे गया, जहाँ से गेम स्टार्ट होता है उसी लाइन पे गया, एंड स्टूड एंड खड़ा हो गया, खड़ा हो गया इन मिडिल ऑफ ओल्ड लेडी, कहाँ मिडिल पे, किसके किसके मिडिल पे, ओल्ड लेडी उस बुढ़ी औरत की एंड ब्लाइंड मैन अंधा आदमी के बीच में खड़ा हो गया उस छोटा बच्चा। देन ही टूक बोथ ऑफ देम, देन ही टूक, देन उसके बाद ही मतलब वो बच्चा ने टूक मतलब ले गया बोथ ऑफ देम उन दोनों को बाई हैंड हाथ पकड़ के, एंड स्टार्टेड टू वॉक एंड चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया स्लोली मतलब धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, एंड एट लास्ट, लास्ट में क्या हुआ, क्रॉस्ड द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया, फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। तो अब वो दोनों लोगों को हाथ पकड़ के एक साथ जा रहे हैं, फिनिश लाइन को टच कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, दिस टाइम, अब उसी टाइम में क्या हुआ, एट एंड मतलब आखिर में ऑफ रेस, रेस के आखिर में क्राउड स्माइल, जो भीड़ थे लोगों के वो स्माइल किए, उन्होंने बहुत हंसे, एंड चीयर्ड एंड फिर चीयर किए, एंड वेव्ड एट एंड ऑफ रेस, उस रेस के एंड होने के बाद, रेस खत्म होने के बाद फिर वेव किया, अपना हाथ उठा के हाथ हिला के उस बच्चे को मतलब चीयर किए खुशी से। उसके बाद ये लिटिल बॉय फेल्ट प्राउड, लिटिल बॉय ने आप क्या, फेल्ट प्राउड मतलब गर्व महसूस किया फिर, बट स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड, बट उसको समझ नहीं आया, स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड मीन्स उसको समझ नहीं आया, वाई क्राउड वॉज नॉट चीयरिंग हिम बिफोर, वाई क्राउड किस लिए, वो जो भीड़ है क्राउड वॉज नॉट चीयरिंग हिम बिफोर, पहले क्यों लोगों ने उसको चीयर नहीं किया, वो भीड़ लोगों का भीड़ ने पहले उसको क्यों चीयर नहीं किया। बट नाउ व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश्ड रेस टुगेदर, बट नाउ अब जब व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम तीनों मिलके फिनिश्ड रेस टुगेदर एक साथ उस रेस को ख़त्म किया, फिनिश लाइन एक साथ टच किए, सो ही आस्क्ड ओल्ड मैन अबाउट इट, ओल्ड मैन को उस बारे में पूछा कि मैंने जब पहले जीता लोगों ने सिर्फ साइलेंटली मुझे देखा, कोई भी चेयर नहीं किए, अब जब मैं दोनों को ओल्ड लेडी को एंड ब्लाइंड मैन को हाथ पकड़ के एक साथ चल के हमने फिनिश लाइन को टच किया तो लोग चीयर कर रहे, तो ये क्यों है, मतलब क्यों है, उस ओल्ड वाइज मैन को पूछा। ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, लिटिल बॉय कि छोटा बच्चा, देखो बच्चा, इन दिस रेस उस रेस में, यू हैव ओन मच मोर, तुमने जीता, यू हैव ओन मीन्स तुमने जीता, मच मोर बहुत ज़्यादा, देन व्हाट यू ओन इन एनी अदर डेज, किससे ज़्यादा, व्हाट यू ओन जो तुम जीतते हो इन एनी अदर रेस, और रेस में जो तुमने जीता है उससे बहुत ज़्यादा उसी रेस में तुमने जीता, कैसे, यू हैव ओन पीपल्स रिस्पेक्ट, तुमने क्या जीत लिया, पीपल्स लोगों के जो रिस्पेक्ट है उसको तुमने जीत लिया। तो आप लोग तुम्हें सम्मान से मतलब चीयर कर रहे हैं, तो तुमने लोगों के सम्मान को जीत लिया। तो उस मतलब स्टोरी पे हमको मैसेज ये दिया गया है कि हर वक्त हमको सिर्फ जीतने के लिए आगे नहीं बढ़ना है, कभी कभी हमको अगर पीछे ऐसे कमज़ोर लोग पड़ जाते हैं तो उनको साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, उनको साथ लेके अगर हम एक साथ चले तो वही असली जीत होता है, एंड उस पर हम लोगों के मतलब लोगों को खुश कर सकते हैं, एंड लोग हमको मतलब रिस्पेक्ट भी देंगे, हम लोगों के रिस्पेक्ट को ओन कर सकेंगे। तो ये मैसेज हमको दिया गया है, तो बहुत अच्छा मैसेज है, उसको हम मतलब फॉलो करके चलना चाहिए हम सबको। एंड ऐसा स्टोरीज़ जो है जो बहुत अच्छा सीख देता है हमको, एंड हमारा जो सेंटेंसेस है डेली यूज़ होता है ऐसे, तो ऐसे आप स्टोरीज़ पढ़ते रहे, स्टोरीज़ को समझने की कोशिश करते रहिए, एंड मतलब उसको डे बाई डे मतलब हम इंक्रीज़ मतलब एडवांस भी होते जाएंगे, आपका जो सीखना है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो चले बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, एंड सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें उस नॉलेज को स्प्रेड करने में, एंड मतलब जितना भी हो सके लाइक शेयर कमेंट करके हमको सपोर्ट करें, हमको मतलब बताएं, योर कमेंट मतलब मीन्स अ लॉट
टू मी। तो हम अपने मतलब आपके कमेंट को पढ़ते भी हैं, उससे सीखते भी हैं, हम इंस्पायर भी होते हैं। तो चले बना रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।